Students, now we are going to solve the numerical of chapter electrochemistry. In chapter electrochemistry, one important topic is Nernst equation. Definitely question will be there in the board exam from the topic Nernst equation. So the question is, calculate EMF of the following cell at 298 Kelvin. For that cell, equation is given, that is chromium plus iron 2 plus gives chromium 3 plus iron, and E node cell is given for different electrodes, chromium electrode and iron electrode. Now as we know, if we have to calculate EMF of the cell, we need to consider the Nernst equation. So Nernst equation is E cell is equals to E node cell minus 0.0591 divided by N log concentration of product by concentration of reactant. This is the Nernst equation. Now this you have to learn the Nernst equation. First you will write concentration of product by reactant, because if you write this chromium or iron wrong and product and reactant concentration is written, your formula will be at least correct. So after this writing the formula, as we know, we need E node cell. To calculate E node cell, we have given two electrodes, potentials of different electrode, cathode electrode and anode electrode. As we know, the formula to calculate E node cell is E node cell is equals to E node cathode minus E node anode. So now we have to find out which one is cathode and which one is anode. Listen carefully. To find out cathode and anode, we have to remember one thing, that the electrode at which oxidation takes place will be always anode, and the electrode at which reduction takes place will be cathode. So here in this numerical, iron is converting into iron 3 plus. As we know, if any metal is liberating electrons, that means it is getting oxidized. So here which electrode is getting oxidized, or which metal is getting oxidized? Chromium. So this is the oxidation potential for chromium. And another electrode is iron, and iron is accepting electron to convert, iron plus 2 is accepting electron to convert into iron. So this is, if any metal accept electron, that will be reduction. So here we can find out which one is, which electrode is getting oxidized और कौन सा इलेक्ट्रोड है वो रिड्यूस हो रहा है जहाँ पे. तो ई नोड सेल के फॉर्मूले से हमने लिखना है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड. एज आई टोल्ड यू, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन है वो कैथोड पे होता है. तो कैथोड पे रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रहा है? आयरन. तो कैथोड का जितना भी आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट वी विल राइट. उसके बाद एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है क्रोमियम का, क्रोमियम 3 प्लस में. तो इसको आपको रिएक्शन में चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं. तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है. अब यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है ई नोड कैथोड की और ई नोड एनोड की. उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. व्हेन वी विल सॉल्व दिस वी गेट 0.34 वोल्ट. दिस विल बी E node cell. Now we have to calculate E cell. So for E cell, what we have to do? We have to use Nernst equation. So we have to write Nernst equation, as I already told you, that is E cell is equals to E node cell minus 0.0591 by N log concentration of Cr3 plus. अब मैंने तुम्हें बताया था कि हमें लिखना है concentration of product
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे तुम्हें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट कौन से हैं। क्रोमियम 3+ और आयरन प्रोडक्ट्स हैं, और आयरन 3+ और क्रोमियम ये दोनों रिएक्टेंट हैं एक केमिकल रिएक्शन में, ये आपको पता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये दोनों हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3+। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी सॉलिड होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। ये तुम थियोरेटिकल चैप्टर में पढ़ चुके हो क्यों होती है, 11th में भी पढ़ चुके हो इक्विलिब्रियम में, कि जो प्योर सॉलिड है या लिक्विड है उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने लेनी है। तो हमारे पास वो है क्रोमियम 3+ एंड आयरन। क्रोमियम की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है और आयरन की 0.1 है। नाउ हमें कोई भी इक्वेशन, ये इक्वेशन तो हालांकि बैलेंस दी हुई है बेटा क्वेश्चन में, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे 2 मोल्स क्रोमियम के हैं तो हमने उसकी पावर 2 लगा दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम रेज टू द पावर विच इज़ इक्वल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन द रिएक्शन। और आयरन के 3 मोल्स हैं, आयरन 2+ के, तो यहाँ हमने पावर 3 लगा दी। तो जितने भी मोल्स होंगे वो हम उसके पावर में यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास E0 सेल हमने कैलकुलेट किया था 0.30, वो लिख देंगे, 0.0591 है। अब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो n इज़ नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब एक रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इसको आप इजीली इलेक्ट्रॉन रिएक्शन देख के समझ सकते हैं कि क्रोमियम इज़ कन्वर्टिंग इनटू क्रोमियम 3+, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, और 2 क्रोमियम एटम्स कन्वर्ट हो रहे हैं 2 क्रोमियम आयंस में। तो एक एटम के कन्वर्ट होने में 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो 2 क्रोमियम में कितना होगा, 6 का होगा, इसलिए n है वहाँ पे 6 आ जाएगा n की वैल्यू। और सेम जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आयरन एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए n होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ n दैट इज़ 6। आफ्टर दैट we will solve this numerical, this divided by 6, and when we will solve this we get 1/10, then log 1 is equals to 0 and log 10 is 1, and when you solve this numerical you get the value of E cell or EMF of the cell which is equal to 0.3098 volt. Now next question we have, that is calculate EMF of cell. One cell is given, reaction is given. In this cell representation is given, cell reaction is not given. This is second type of question. So in this what we have to do, we have to write reaction for this. If we write equation it will be easy for us to write the cathode, to find out the cathode and anode. So in the reaction always left side oxidation takes place, and left side oxidation term will be written and right hand side reduction term will be written. So oxidation means, how to write this reaction, we can write that iron is converting into iron 2+, and right hand side reduction means H+ is converting into H2. To balance this equation we can put here 2. So after writing this equation, now we will find out oxidation and reduction. This iron is getting oxidized, so this is oxidation. oxidation किस पे होता है, एनोड पे, एंड यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ये रिडक्शन कैथोड पे होता है, तो ये E0 कैथोड हो गया। तो एज वी नो वी हैव फॉर्मूला E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड।
तो ई नोट कैथोड क्या हो गया यहाँ पे 0, H2 का पोटेंशियल 0 दिया हुआ है और एनोड का -0.44 लिखेंगे तो हमारे पास ई नोट सेल आ जाएगा, वो है 0.44 वोल्ट्स। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है ई सेल, जो हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। बेटा पहले यहाँ पे आप नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन, ताकि कोई मिस्टेक ना हो उसमें। एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अभी मैंने वो रिएक्शन लिखी थी, उससे हमें पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट कौन से हैं और रिएक्टेंट कौन से हैं और एन की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए एक बार उस रिएक्शन को फिर से देख लेते हैं। आयरन 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और H+ हैं वो H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया था। तो यहाँ पे एक ही आयरन है, आयरन 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और वही H+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए N2 है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पहले जिसकी कांस्टेंट है उसको राउंड ऑफ कर लो। आयरन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी क्योंकि प्योर सॉलिड है। H2 की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी क्योंकि ये 1 बार एटमॉस्फेयर पे प्योर गैस है। तो वो चीज़ें हमने छोड़ देनी है जो कांस्टेंट है, सिर्फ आयंस ध्यान रखने हैं आपको, ऐसे ध्यान रखना है इसमें। तो Fe2+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H+ है और आयरन का 1 मोल है, इसलिए पावर 1 होगी और पावर 1 को लिखते नहीं है। H+ के 2 मोल्स हैं, इसलिए पावर 2 है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पावर 2 लिख दी है H+ की। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी ऑलरेडी हैव फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल, वो पुट कर दिया है हमने। उसके बाद 0.0591 बाई एन log। नाउ Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.001 m, वो लिख देंगे। उसके बाद H+ की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.01 m, इसकी स्क्वायर है 2 टाइम्स लिख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे log 10 आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और जब हम इसको सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4105 वोल्ट्स। So like that we can solve the numerical.